بچی کی معصومیت، اس کی آواز کا بھول پن اور جسم فروشی کے دھندے میں زبردستی جھونک دیے جانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں حیاداری اس بچی کے ایک ایک لفظ کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ کیا نام کیا آپ کا؟ کشش۔ مسئلہ کیا آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے زبردستی مجھے باہر دبئی بھیجتے ہیں۔ کس لیے بھیجتے ہیں؟ مطلب غلط کام کروانے کے لیے، مطلب گھر پہ بھی مطلب ایسے بندے بلا کے مجھ سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اس کام سے منع کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو مجھے بہت مارتے ہیں، مما پاپا بہن بھائی سب بہت مارتے ہیں مجھے۔ اچھا، آپ اکیلی ہیں یہ کام کرتی گھر میں یا کوئی اور بھی جس سے یہ کام کرواتے ہیں؟ نہیں، میری سسٹر بھی کام کرتی ہے لیکن وہ اس کام کے لیے راضی ہے۔ کیا عمر کیا آپ کی؟ میری 17 سال ایج ہے۔ اور نام؟ کشش۔ کشش نام ہے۔ جی۔ اور یہ کب سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ 14 سال کی ایج سے۔ 14 سال سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ مطلب 14 سال کی عمر تھی جب سے یہ ہو رہا ہے؟ جی۔ اس میں انوالو کون ہے؟ کون یہ چیزیں کروا رہا ہے آپ سے؟ میرے مطلب سب کروا رہے ہیں، ماموں بہن بھائی پاپا یہ سب مل کے کروا رہے ہیں۔ اچھا، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ جی۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، میں گھر والوں کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے یہاں سے نکالو، میں نکلنا چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ زبردستی کام کرواتے ہیں مجھ سے، جو بار دبئی بھیجتے ہیں، تو پلیز مجھے یہاں سے نکالو، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ یہاں سے نکل کے کہاں جانا چاہتی ہیں؟ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، بس عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، اس سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ ویسے پروردگار کے بھی کیا کہنے، اپنے چاروں جانب بدن فروشی کے کاروبار کی موجودگی کے باوجود خدا نے اس بچی کا دل کیسے اس گھناؤنے کام سے پھیر دیا تھا۔ ماں بھی جسم فروشی میں ملوث رہی، بہن بھی اسی کام سے وابستہ تھی، سگا ماموں جسم فروشی کے لیے دبئی بھجواتا تھا، باپ بھی خاموش رہ کر اس کام کا حامی تھا۔ لڑکی کی ماں نے بعد میں بتایا کہ ان کے خاندان کے بیشتر لوگ جسم فروشی کا یہی کام کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں خالق کائنات کی ذات پر کہ جس نے اس خاندان کے لیے جسم فروشی ایک معمول کا کام ہونے کے باوجود 14 سال کی اس بچی کے دل میں اس کام کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی اور اسے یہ ہمت عطا کی تھی کہ وہ ٹیم سریام سے رابطہ کر کے اس دھندے سے نکلنے کی کوشش کرے۔ کشش کی اپیل پر مبنی ویڈیو کی بنیاد پر ہم نے قانونی مدد حاصل کی اور پولیس کے ہمراہ لاہور میں بند روڈ کے قریب واقع اس بچی کے گھر کی جانب بڑھے۔ پولیس کے ہمراہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے نمائندے کو ایک بار پھر گاہک بنا کر کشش اور دلکش کی ماں کے پاس بھجوایا تاکہ وہ ایک بار پھر کشش کے ساتھ وقت گزارنے کی پیمنٹ کر کے اس بات کو یقینی بنا لے کہ بچی گھر پر ہی موجود ہے۔ ہم پولیس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے کشش کی ماں سے ہی سامنا ہوا، وہ ماں جس کا جوان ہڈ حرام بیٹا اس کے سامنے پڑا سو رہا تھا اور 14 سالہ بیٹی اپنی ہڈیاں توڑوانے کے لیے اوپر ایک گاہک کے ساتھ موجود تھی۔ وہ الگ بات کہ گاہک اصل میں گاہک نہیں تھا بلکہ ہمارا نمائندہ تھا۔ لڑکی کی ماں سے دوپٹہ لینے کی درخواست کر کے ہم کشش کی تلاش میں اوپر کے فلور کی جانب بڑھے جہاں موجود کمرے میں گاہکوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ سیڑھیوں پر کشش کی بہن دلکش ایک طرح سے پہرا دینے کے لیے موجود تھی۔ کشش کہاں ہے؟ ہاں جی، آپ کیا ہیں اس کی؟ میں ممی۔ امی ہیں آپ اس کی؟ وہ دوپٹہ وغیرہ ہے تو لے لیں آپ، آپ کرتے ہیں۔ آپ کو کشش بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ دل کے کشش کہاں ہے؟ کشش کہاں ہے بیٹا؟ رستہ دینا، رستہ دو بچے۔ کیا حال ہے آپ کا؟
14 साला कशिश ने जिस मासूमियत और भोलपन से इस दलदल से निकलने की अपील रिकॉर्ड करवाई थी, उसी मासूमियत और भोलपन से उसने अपनी तमाम कथा हमसे कह दी। बच्ची का एक एक लफ्ज नश्तर बनकर दिल में चुभ रहा था। एक सगी माँ, सगी बहन, सगा बाप और भाई कैसे एक मासूम सी गुड़िया को यूं नीलाम कर सकते थे। बच्ची को कुछ दिन बाद उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एक बार फिर दुबई भेजा जा रहा था, लेकिन खुदा ने टीम सरेआम को इस बच्ची को एक बार फिर इस आग से बचाने का वसीला बनाकर भेजा था। कशिश नाम है आपका? जी। और एज क्या आपकी? 17। आपको शनाख्ती कार्ड वगैरह या कोई अभी चीज़ कोई ऐसी नहीं बनी? बना हुआ। पासपोर्ट बना हुआ, शनाख्ती कार्ड बना? जी। शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ? जी। उम्र बढ़ा के बनाया। तो अभी किधर भेज रहे थे आपको ये आज? आज नहीं, हफ्ते बाद दुबई भेज रहे हैं। दुबई भेज रहे थे? जी। और कौन कौन मुलव्विस था इसमें? मेरी सिस्टर भी है। आपकी सिस्टर जो दिलकश है? हाँ जी। और वालदा भी? हाँ जी। पापा और सब, पापा भी हैं, भाई भी, ये सब। और आप क्यों नहीं करना चाहती हैं ये काम? सारे तो कर रहे हैं, बहन भी कर रही है, सब करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये काम। मैं इसे मतलब इस काम से निकलना चाहती हूँ बस। इससे पहले आपने किसी को कहा मदद के लिए, पुलिस को या किसी और को? किसी को नहीं। 3 साल तक आप बर्दाश्त करती थी ना ये? जी। तो क्या सोचती थी? यही सोचते कि मतलब अब बस यहाँ से निकलना है मुझे, इसलिए मैंने ये आपने सब अपने किया। अम्मी अब्बू से कहा कि मुझे ये काम नहीं करना? मैंने बोला है, वो मैं जब उनको बोलती हूँ कि मुझे काम नहीं करना, वो मारते हैं, फिर मुझे इस कमरे में बंद कर देते हैं, 3 दिन खाना नहीं देते। और कब से कर रहे हैं ये लोग बहन के साथ और बाकी सब लोगों के साथ? ये कब से हो रहा है? मेरी सिस्टर तो 5 साल से कर रही है, मैं 3 साल से। 3 साल से आप कर रहे हो? जी। और कौन लोग आते हैं या आपको ये भेजते हैं? घर भी बुलाते हैं, घर बुला के भी गलत काम करवाते हैं, और दुबई में भी। और दुबई भेजते हैं? जी। आपको रात किसी के पास भेजते नहीं है? किसी के पास नहीं भेजते, यहीं पे घर बुला बुलाते के। जी। हैं? और पैसे क्या लेते हैं आपको भेजने के? कभी 10,000 या 20,000। और आपको उसमें से कुछ मिलता है? मुझे कुछ नहीं। स्कूल गई आप? पहले जाती थी, बाद में फिर छोड़ दिया। किस क्लास तक? कशिश से लरजती कपकपाती आवाज और दबदबाई हुई आंखों के साथ गुफ्तगू जारी ही थी कि उसकी माँ भी नीचे से ऊपर आ गई। शुरू में उसे लगा कि शायद हम उनके इस धंधे के खिलाफ कार्रवाई करने आए हैं, मगर हमारा हमेशा से ये उसूल रहा है कि कोई अपनी मर्जी से मुंह काला करता है तो करता रहे, क्योंकि इस सूरत में ये उसका और खुदा का मामला है। लेकिन जहां जोर जबरदस्ती से जिस्म फरोशी किसी पर मुसल्लत की जा रही हो, वहां हम समझते हैं कि हमारा और मुआशरे का फर्ज है कि उसकी मदद की जाए। कशिश की माँ को हमें ये बात समझाने में कुछ वक्त लगा कि हम खुद यहाँ नहीं आए, उनकी बेटी ने हमें मदद के लिए बुलाया है, जिससे वो जबरदस्ती बदन फरोशी करवा रही थी। वो रहना ही नहीं चाहती आपके साथ, छोड़ दें। आ जाओ बेटा, आप साइड पर, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आप बेटा आप पर क्यों करवा रही थी इससे? वो नहीं करना चाहती है। बेटा हम क्या करें फिर? नहीं तो जबरदस्ती करवाएंगे अपनी क्या बेटी नहीं से? क्या करें फिर हम? बेटियां बंदा बेचना मेरा शुरू छोड़ कर गया, अब मुझे तलाक दे दी। बेटियां बेचना ठीक शुरू है। कर। वो तो कह रही मेरा बाप भी इन्वॉल्व है साथ। छोड़ गए, लेकिन फिर भी बोलते हैं। मतलब शादी उन्होंने कर ली, अपने बच्चे पैदा कर ली, हम किधर जाएंगे बताओ? बेटी की मर्जी के खिलाफ ठीक है। हाँ? आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, कोई हमको परेशानी नहीं आपके लिए पैदा करने आए। वो ये काम नहीं करना चाहती, उसको नहीं करना चाहिए ये काम, उसको हम ले वो जाएंगे नहीं जहाँ करना जाना चाहते, हैं। नहीं करना चाहती। हाँ जी। एक माँ का काम है ना कि उसको फिर सेफ गार्ड करे, उसकी हिफाजत करे। तो बेटा फिर हम क्या करें? हमें कौन पूछता है? अपने मेरी बात सगे बहन सुनिए, भाई नहीं पाकिस्तान में पूछते। 22 करोड़ लोग हैं, सारे हाँ। जिस्म बेच के तो नहीं खाना खा रहे। हाँ। अल्लाह कहीं ना कहीं से उनके रिस्क का, उनके घर चलाने का लेकिन वसीला बेटा- बना रहा है ना। एक सगी माँ अपनी मासूम सी बेटी से जबरदस्ती जो कुछ करवा रही थी वो काबिले मजम्मत था, लेकिन इस खातून के कुछ सवाल और कुछ बातें ऐसी थी जिनका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं था। ये सारे लोग पाकिस्तान में क्या जिस्म बेच के खाना खा रहे हैं? अल्लाह कहीं ना कहीं से रिस्क का हमने उनका वसीला काम भी बना रहा है। करके देखा फैक्ट्रियों में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी बेटियों पे नज़र ही रखी जाएगी तो क्या फ़ायदा? फिर क्या करें हम? जो काम देते हैं फैक्ट्रियों वाले वही लाइन मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने अपनी रोटी चलानी, हमने अपना पेट, हमने रोटी खानी है, तो फिर किस तरह करें? जिस तरह भी थोड़ा थोड़ा किया जाता है फिर हम करते हैं। इसने कभी कहा आपसे कि माँ मैंने नहीं काम किया? उसने कहा कि नहीं मामा, अब क्या करें? फिर वो भी मजबूर है, उनको पता है, आपको बिल दिखाते हैं, हम 2 महीने का बिल है हमारा,
तीसरी बार भी ऐसा हो चुका, हमारा मीटर काट के ये मोहल्ले वालों ने मिल के बेचारों ने ये तसल्ली दी उनको कि नहीं हम बिल उतार देंगे, आपकी मेहरबानी, ये गरीब है, इनके कमाने वाला कोई नहीं, आप ना मीटर लगा दो। बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह 4 हैं। बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। ये घर मेरी अम्मी का है, ठीक है, ठीक है। मेरी अम्मी का घर है, हमारा नहीं है, सही है। तो हमें तो अम्मी ने इधर रहने के लिए दिया है कि चलो ये किरायों पे धक्के खाओगे आप लोग, इधर रहो। क्या मिल जाता होगा आपको इसको, बच्ची को, बेचारी को? दुबई भी जाती है? हाँ दुबई कितनी भी बार भेजते हैं, कितनी बार, 5-6 बार गए। तब भी ये कहती थी कि मुझे नहीं जाना। ये तो करना ही नहीं आप चाहते, ये सोचिए ना, इनका भी अब दिल देखिए करता ना, फिर मैं है आपको मेरे। एक भाई के तौर पे कह रहा हूँ कि वो बच्ची जो बेचारी नहीं ये काम करना चाहती, उसके साथ वहाँ दुबई में क्या क्या सलूक नहीं होता होगा, नशे में, शराब में, ऐसे ही है ना, लोग कोई अच्छे लोग तो नहीं आते होंगे इसके पास। क्या मिलता है, कितने महीने के लिए जाती है? हाँ से हम 2-3 अब लाख सगी ले माँ है लेते इसकी? हाँ जी। दिल पे कुछ नहीं होता जब ये दुबई गई हुई होती है कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा होता होगा?